Hello dear students, welcome to NEET Shala and we are going to discuss a very important topic regarding admit card. So what all the things you have to do in admit card, I am going to explain you one by one every single point. First is that I have read the instructions, guidelines and relevant orders of Government of India pertaining to COVID-19 pandemics. I have read information bulletin, instructions and notices related to the examination available on website nta.nic.in. So this website you have been suggested, students have been asked to read the instructions again and again on the website. We'll take you to the website also, don't worry. But today we are going to discuss only what is mentioned in admit card. See, now second thing is very important. I have in the last 14 days, please tick wherever it is applicable to you, otherwise leave it blank. So what things like flu like symptoms, number A, flu like symptoms, fever, if you had fever you have to tick for fever after the word they have given the box, cough, breathlessness, sore throat or runny nose, body ache, others, if anything else other than these elements then please specify. तो अगर आपको कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ हुआ था, बुखार थी, खांसी था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी, आपकी थ्रोट थे या फिर रनिंग नोज था, बदन में दर्द था या फिर कोई और चीज़ था, तो फिर आपको वो स्पेस पे लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और चीज़ नहीं थी, इनमें से ही कुछ था, तो वो आपको टिक करना है। वो जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बाद वहाँ पर बॉक्स प्रोवाइडेड है, वहाँ आपको ये टिक करना है। Option B, being in close contact with a confirmed case of COVID-19. Close contact means being at less than 1 meter distance for more than 15 minutes. इसको ज़रूरी समझिए. Suppose you have met someone who was COVID positive and you were in close contact with the person. Close contact means at a distance less than 1 meter and you had stayed there for more than 15 minutes. Only then you have to take. So first you have to be in close, if you were in close contact more than 15 minutes and 1 meter. ये तीनों बात. अगर आप किसी से 1 मीटर की दूरी से कम पर हो और वो इंसान कोविड पॉजिटिव था और आपने उससे 15 मिनट से ज़्यादा आप उसके कॉन्टैक्ट में रहे थे, तो आपको ये ऑप्शन बी टिक करना होगा. Not been in close contact with a person suffering from COVID-19 and am not under mandatory quarantine. Third option is that if you did not come in close contact with anyone and Government of India did not ask you to be quarantined because of any reason. Sometimes it happens now that you travel and that's why you have been asked to get quarantined. So all those restrictions are not there with you, then you have to put a tick mark. मगर तो ये जो ऑप्शन सी है, इसमें कहा गया है कि आप किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं थे और आपको क्वारंटीन होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कहीं से कोई भी डॉक्टर, हॉस्पिटल कहीं से भी सजेस्ट नहीं किया गया था, मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था ऐसा रिलेटेड, तो आप वो थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज़ और कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर, ठीक है। तो आप अगर कोई 3-4 शहर या कोई कंट्री आप गए हो यहाँ अपने सेंटर पे पहुँचने से पहले, तो आपको वो चारों सिटी का नाम भरना है और डेट ऑफ अराइवल इन द सिटी, इन द सेंटर सिटी, जो आप मेंशन करोगे वहाँ आप कब कब गए थे, आपको वो मेंशन करना होगा, ठीक है। थर्ड, द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द सेंटर रिजर्व्स द राइट टू डिनाई एंट्री टू इट्स प्रेमाइसेस। ये उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कोई डाउट होगी तो फिर वो एंट्री नहीं भी देंगे किसी को, क्योंकि उनके लिए वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स, वेल बीइंग ऑफ पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट. फोर्थ, आई या वी have read the detailed important instructions for candidates as given on page 2 and advisory for candidates regarding COVID-19 as given on page 3 and I or we undertake to abide by the same. आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर लगाना है जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचने से पहले लगा होना चाहिए. कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू बी पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर एग्जामिनेशन, ये भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने से पहले ही लगा लेना है. कैंडिडेट के पेरेंट्स का सिग्नेचर और कैंडिडेट्स का सिग्नेचर. कैंडिडेट का सिग्नेचर आप नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू साइन for yourself before examination center, not on examination center, in front of invigilator. You will be asked to sign and then you have to sign in front of invigilator, ठीक है। और ये जो ऑप्शन 3 है ना, द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर
फर्स्ट प्रायोरिटी देयरफॉर द सेंटर रिजर्व्स द राइट टू डिनाई द एंट्री टू इट्स प्रेमाइसेस, यानी कि ये हम एक साइन करके दे रहे हैं कि अगर मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम होती है तो सेंटर मुझे एंट्री ना करने दे, इसके लिए हम साइन करके दे रहे हैं। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। हाँ, ये एनटीए ने नहीं बोला, ये हम मान के साइन करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना, और अपना साइन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले नहीं करना है, आपको आपका साइन इन्विजिलेटर के सामने करना है। बाकी सब किया हुआ होना चाहिए सेंटर पहुंचने से पहले। पेरेंट्स का सिग्नेचर बहुत बच्चे लेना भूल जाते हैं, तो मेक श्योर दैट यू take the signature of parents. The above undertaking has to be filled in advance before reaching the center, except candidate signature, which has to be done in the presence of invigilator. Dear students, I've been telling you about this again and again. अब आगे देखते हैं important instructions for candidates. Candidates के लिए क्या क्या instructions दिए गए हैं। As a precaution for COVID-19, the candidates must reach the center as indicated against reporting or entry time at the center in the admit card. आप सबके एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड है, आपको उसी टाइम पर पहुंचना है अपने सेंटर पर। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम भी मैंशनड होती है, उसके बाद आपको वहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। सो यू हैव टू बी ऑन टाइम। जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, हर बच्चे को अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो आपको आपके टाइम के हिसाब से पहुँचना है। नो कैंडिडेट्स शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आप बीच से उठ के नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट लीव द सेंटर इन बिटवीन, you have to stay in the center till the entire examination gets over. On completion of the examination, please wait for the instruction from the invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidates will be permitted to move out one at a time only. एक समय पर एक ही कैंडिडेट, एक समय पर एक ही स्टूडेंट को बाहर जाने दिया जाएगा। तो खुद की मर्जी से उठकर आपको चलना स्टार्ट नहीं करना है, जैसे कि हम भेड़ बकरी की तरह भागना स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। वो इस बार नहीं करना है अगर कोरोना से बचना है तो। All candidates are required to download and carefully read the instructions and advisory for COVID-19 given with the admit card and strictly adhere to them. जो भी instructions आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है, जो भी इंस्ट्रक्शंस एनटी अपनी वेबसाइट पे देगा, वो सब आपको पढ़ के एक एक इंस्ट्रक्शन को मानना होगा। अगर एक इंस्ट्रक्शन भी नहीं माना तो फिर भगवान भला करे। Number 6. This admit card consists of 3 pages. Page 1 contains the center detail and self-declaration undertaking from form regarding COVID-19. Page 2 has important instruction for candidate and page 3 has advisory for candidates regarding COVID-19. The candidate has to download all the pages. आपको ये तीनों पेज डाउनलोड करना है, सिर्फ ऐसा ना करना कि पेज 1 को डाउनलोड करके ले गए, तीनों पेज डाउनलोड होना चाहिए। Admit card is provisional, subject to satisfying the eligibility conditions are given in the information bulletin. The candidates are suggested to verify the location of examination venue a day in advance so that they do not face any problem on the day of examination. एनटीए ये हमेशा कहता आ रहा है कि आपको आपके टाइम एग्जामिनेशन सेंटर को पहले देख लेना। और बच्चों एक बात और, आपको एडमिट कार्ड में सिर्फ फर्स्ट पेज डाउनलोड नहीं करना है, तीनों पेज डाउनलोड करना है, 1, 2 एंड 3। 2 एंड 3 ठीक है, भले ही एडवाइजरी है और वो SOPs के इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन एडमिट कार्ड में तीनों होना चाहिए। Number 9. If religion or customs require you to wear specific attire, please visit center early for thorough checking as and mandatory frisking. अगर आप कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोगों के रिलीजन में होता है कि आपको कुछ चाकू या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें लेके जाना है, या फिर आप कुछ रिलीजियस अटायर में जा रहे हो तो आपको पहले पहुंचना होगा। होता है ना कि जैसे कोई चीज़ होता होगा कि मान लीजिए आपको चाकू हमेशा आपके रिलीजन ने कहा है तो कैरी ही करना है, तो आपको पहले जाना होगा अगर आप रिलीजियस ड्रेसेस, रिलीजियस अटायर में जा रहे हो, ताकि प्रॉपर चेकिंग कर ली जाए आपकी। No candidate would be allowed to enter the examination hall without admit card, undertaking valid ID proof and proper frisking. Frisking through handheld metal detector attached with a long rod will be carried out without physical touching. तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या ले जाना है? एडमिट कार्ड जिसमें तीनों पेजेस डाउनलोडेड होने चाहिए, आपका प्रॉपर ID प्रूफ और ID प्रूफ के अलावा आपका वो मेटल डिटेक्टर से वो आपका हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के थ्रू आपका वो चेकिंग करेंगे, लॉन्ग रॉड रहेगा।
ताकि फिजिकल टचिंग ना हो. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन द एग्जामिनेशन वेन्यू. अब क्या क्या ले जाना है और वैलिड ID प्रूफ क्या होगी. Okay, so admit card along with self-declaration undertaking downloaded from NTA website, a clear printout on A4 size paper, duly filled in, personal transparent water bottle, additional photograph, same as uploaded on application form to be pasted on attendance sheet, personal handheld sanitizer, 50 ml mask and gloves, PWD certificate and scribe related documents if applicable. Before reaching the center, the candidates must enter required details in the self-declaration in legible handwriting, paste the photograph, put left-hand thumb impression and candidate's parent signature at appropriate place. They should ensure that their left-hand thumb impression is clear and not smudged. The candidate has to put their signature on the day of examination in presence of invigilator in the examination hall. Candidates must carry any one of the original valid identification proof issued by Government of India, PAN, driving, voter ID, 12th board, admit card or registration card, passport, Aadhaar card with photography, e-Aadhaar, ration card, Aadhaar enrollment number with photo, all other ID copies of IDs, even if attested scan photos of IDs in mobile phone will not be considered as valid proof. देखिए, आपको ज़रूरी बात, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आपको ये यहाँ पे मेंशन, अभी तक तो कोई वर्ड नहीं आया है कि कलर्ड एडमिट कार्ड होगा या नहीं होगा, तो आप कलर्ड एडमिट कार्ड ही निकाल कर ले जाएंगे. और आप ID प्रूफ में क्या ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ले जा सकते हैं या फिर वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, 12th बोर्ड का एडमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफ 12th बोर्ड, या फिर पासपोर्ट ले जा सकते हैं या आधार कार्ड ले जा सकते हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ हो, और e-Aadhaar, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फ़ोटो. और एक और चीज़ यहाँ पे कहा है कि अगर आप कोई और दूसरा ID कार्ड लाते हैं या फिर आप फ़ोटो में मोबाइल में डालकर भी लाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. प्रॉपर ID कार्ड ऑन हैंड शुड बी देयर. उसके अलावा आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना है. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml होना चाहिए. फ़ोटोग्राफ आपको एक एक्स्ट्रा रखना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हो. मास्क और ग्लव्स होने चाहिए आपके पास. PWD certificate and scribe related documents अगर applicable है. PWD candidates must bring PWD certificate issued by competent authority if claiming relaxation under PWD category. The scribe must also carry his or her own self-declaration regarding educational qualification, example, passport size photo, valid government identity card and self-declaration. The candidate must bring his or her own scribe as per norms for scribe. Candidates are not allowed to carry any personal belongings. कोई personal belongings जैसे कि electronic devices, मोबाइल फ़ोन, बैंड और कोई बैंड आइटम्स आप नहीं ले जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में मोबाइल ले जाओगे, कोई आपका रखेगा, मोबाइल मत लेकर जाना. ओके. और एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीप ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स. वो आपके सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो ड्रेस कोड, शूज़, फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड. अच्छा देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड. आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को. जनरली ना वो पसंद करते हैं कि आप ट्राउजर्स ले लो और टी-शर्ट डाल लो. ट्राउज़र, टी-शर्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, जिसमें कि मेटालिक बटन्स नहीं होना चाहिए. वो मेटल डिटेक्टर से ये करते हैं, फिर बटन उठा के तोड़ के फेंकते जाना. अगर मेटल के बटन्स लगा के जाओगे तो समझ लेना. शूज़ और फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड. साफ लिख दिया. बड़े बड़े बटन्स वाले ड्रेस मत पहनना. मेटल्स नहीं होने चाहिए ड्रेस में, इसका पूरा कोशिश करना. और साथ में कि मोटा वाला जूता वूता मत पहन लेना जिसमें कि थिक सोल यानी कि बहुत मोटा हो. ठीक है, क्योंकि वो दूर से आपकी चेकिंग करने वाला है, फिर लग जानी है वोट. वो ज़्यादा कोविड के वजह से फिर आपको वो तुरंत निकाल भी सकते हैं. Duly filled admit card at the end of examination center must be handed over to invigilator. अगर आपने अपने एडमिट कार्ड ठीक से नहीं दिया तो आपका OMR शीट का इवैल्यूएशन नहीं होगा. इसलिए एडमिट कार्ड को ध्यान से ले जाना है. जो सिग्नेचर्स और आपको आपका थंब इम्प्रेशन पहले से लगा के जाना है. बस सिग्नेचर एडमिट कार्ड का आपको टीचर के सामने करना है. नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स. आपको चीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं करनी है. CCTV सर्वेलेंस के अंदर होगा.
एनटीए वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करना है और अपना मेल बॉक्स ऑफ ईमेल और एसएमएस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसके थ्रू आपको चेकिंग करना है। ठीक है, आपको अपना मेल और वो चेक करते रहना है। ठीक है, और अब ये जो है एडवाइजरी है प्रिपरेशन एट द सेंटर, तो वो सेंटर्स क्या क्या करेंगे उसके बारे में दिया है। प्री एग्जामिनेशन और ये जो भी दिया हुआ है ऐसा करते हैं कि हम इसको एनटीए की वेबसाइट की चेकिंग के साथ डाल देंगे। ठीक है।